بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد و آل محمد و فرجہم پانے والی سورہ فاتحہ کا جواب. اس مجلس کا ثواب خریدن پاک بارے امام شہیدان کربلا اسیران کربلا کی خدمت میں پہنچے. اس کا جو اجر عظیم ہے مرزا علی حسین مرحوم, مرزا غلام حسین مرحوم, مرزا یاور حسین مرحوم, مرزا جعفر حسین مرحوم, مرزا عباس حسین مرحوم, مرزا مظفر حسین مرحوم, سید اسرار حسین زیدی مرحوم, سید قرار حسین زیدی مرحوم, لیاقت بیگم مرحومہ, مرتضیٰ بیگم بنت مبارک علی مرحومہ, سید افضلی بیگم بنت سید عباس حسین مرحوم, التجا بیگم مرحومہ بنت سید عنایت علی زیدی مرحوم, سیدہ رضوانہ زیدی مرحومہ بنت سید اسرار محسن زیدی کے ارواح کو پہنچے. مرزا سجاد حسین مرحوم کی بھی ارواح کو پہنچے. مالک مرحومین کے درجات کو عالی فرما, ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, برزخ کی منزلوں کو ان پہ آسان فرما, ان کی ارواحوں کو وادی السلام میں اعلیٰ و اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی خبروں کو نورانی و کشادہ بنا دے, ان کی خبروں میں مولا حسین شفاعت کے لیے آئے, ان کی خبروں پہ نور کو نازل فرما, ان کی ارواحوں کو مولا حسین کے روضے پہ پہنچا دے. خاندان اہل بیت جتنا بلند ہے اتنی بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وراحت العاشقین ومراد المشتاقین. جسم مقدس مؤثر فی البیت والحرم واللعب عاصم وجبریل خادم وبراق مرکب وسدرۃ المنتہى مقامہ قاب قوسین. مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود والسید العرب والعجم ابو القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أسد الله كل غالب ومطلوب كل طالب كرار الخير فرار صاحب ذو الفقار خسيم الجنة والنار وفاته خيبر خندق بدر حنين علي بن أبي طالب. صلوات ماشاءاللہ سے 3 گھنٹے یہاں آپ کو آگے ہوا ہے. جو پہلے آئے ہیں 3 گھنٹے ماشاءاللہ سے آپ کے بازوں میں خدا قوت حیدری عطا فرمائے. اور ہم سب کے حیدرآباد سے جتنے خواتین آئی ہیں اور اسکالرس آئے ہیں, ہم دونوں جو بھی اللہ ہماری حقیقی خدمتوں کو قبول فرمائے اور بلانے والوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے, اور حاضرین ہم سب کی اس عظیم عبادت کو مالک قبول فرمائے. علی اکبر کا صدقہ اس سخی دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. ہم سب کو خدا زینبی اور فاطمی کردار پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزم, آج اس مجلس کا موضوع انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور کے بارے میں رسول اکرم نے بعض قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد معرفت امام زمانہ افضل عبادت انتظار فرض. صلوات پڑھیں. بعد معرفت کے بغیر کوئی کام نہیں ہے. اسی لیے اللہم عرفنی نفسک, میرے نفس کی قیمت میں آپ مجھے پتہ ہونی چاہیے, آپ کے نفس کی قیمت آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ نفسی ہے جو پیش ہوتا ہے. ہوئے خواب میں وہ جو روبرو کیا پیش دل تو کہنے لگے یہاں بس وہی دل قبول ہے جو اسیر عشق امام ہے. جس دل میں امام زمانہ کی محبت نہیں ہے, یہاں مجلس میں خود ہم لوگ ایک ظلم کرتے ہیں ہمارے امام پر. اکثر لوگ جنہیں معرفت نہیں پتا وہ یہ ظلم کرتے ہیں کہ اگر میرے بابا کو خدا درجات عالی کرے, میرے بابا کی میت میں کوئی آئے اور مجھے ہی پرسہ نہ دے. امام کو پرسہ دینے کے لیے 2 مہینے 8 دن فرش عزا بچھاتے اور امام استقبال کے لیے آتے, اور امام کا کوئی لفظ زبان پہ ذاکر کیا آتا نہیں, مجلس ختم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور
ایک کوشچن ہے میرا آپ تمام سے، میں ہمیشہ ایک کوشچن کرتی ہوں جب میرا موضوع ہوتا ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، میرے مولا، ہم سب کے مولا، جن کے لیے تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئی آنکھیں، مولا تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئی آنکھیں، نہ جانے کون سی بستی میں بس گئی آنکھیں، اب اس سے بڑھ کے عقیدت کی کیا گواہی دوں، تمہارا نام جو آئے برس گئی آنکھیں۔ محمد والے محمد، تمہاری دید کا ہے انتظار آنکھوں کو، قرار دیجئے بے قرار آنکھوں کو۔ یہ جو مین جملہ ہے یہ آپ لے کے جائیے، اور محرم بالکل قریب ہے۔ جو امام حسین 61 ہجری قیامت عظیم قربانی، قیامت آ جاتی اگر مولا سجاد سجدہ نہ کرتے، جو قربانی ہو چکی ہے جس پہ فرش ازا بچھانا، اور ہم شیعوں کو بلانے کے لیے بڑے بڑے دعوتوں کو ہم ٹھکرائیں گے، لیکن مجلس تو ہم چلے آئیں گے، مجلس میں بلاؤ تو ہم کسی حال چلے آئیں گے، وائرس میں چلے آئیں، وہ سارے ریلیجنس کے کام ڈسکنٹینیو ہو گئے، لیکن ہماری آزاداری بڑے پرجوش عقیدت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے ہوئے لوگ وائرس میں آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ امام علی سے لے کر امام حسن عسکری تک، اور خود رسول اکرم نے بھی کہا سب سے افضل عبادت ہے حجت خدا یوسف زہرا، امام زمانہ مہدی منتظر جان فاطمہ الزہرا، اور جھولے لرزش کا انتظار کرنا۔ برائے سلام کی امام زمانہ بابا سے جو واقعہ ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے شریعت بچی ہے، وہ 61 ہجری کربلا امام حسین کی شہادت عظمیٰ، 72 شہید ہوئے ہیں، اور ہم لوگ 2 مہینے 8 دن اس شہادت پہ دیتے ہیں۔ آئینہ طالب بے دم المقتول بے کربلا، دعائے ندبہ میں جو ہم جمعے کو پڑھتے ہیں، کہاں ہے خون حسین کا انتقام لینے والا، اور جو ہونے والی ہے ایک ایسا معرکہ جو ہونے والا ہے، اس کی تیاری کے لیے منتظر بننا ضروری ہے، معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو ہو گیا نا اس پہ رونا آسان ہے، جو ہونے والا ہے اس میں شریک ہونا مشکل ہے۔ جو ہو گیا ہے نا اس کا تذکرہ کرنا آسان ہے، جو ہونے والا ہے اس میں میری کیا پلیسمنٹ ہے، مولا میں ایسا کیا کروں کہ مجھے آپ کی قربت مل جائے۔ جیسے حور کو ملی تھی ایک رات کی فکر، ہماری فکر میں امام زمانہ ہوں گے تو ہماری عبادتیں حسین ہو جائے گی۔ تصور میں تصویر جہاں کھینچتی ہوں، شبیہ امام زمانہ کھینچتی ہوں۔ نماز کو حسین بنانے کا نسخہ ہے تصور میں امام کو لائے۔ مولا آپ کہیں آپ پڑھ رہے ہیں نا اول وقت میں، تو میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ آپ کی یاد میں جاؤں گی مصلی پر، جو جس کے لیے خود شاہدہ جو خطبہ پڑھتی ہے اس میں آپ بارہا سنتے ہیں کہ آپ پورا رسول اکرم سے لے کر مہدی مولا تک کے پورے 14 معصومین کا نام جو لیتی ہے، وہ خطبے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو سارے 13 معصومین کی کمالات عظمیٰ کو لیے ہوئے اللہ کی طرح جو پردہ غیبت میں ہے، اس کا انتظار خدا، اور خود قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اب انتظار جو ہے کچھ لوگوں کو انتظار ہی نہیں آتا۔ امام کا انتظار کب یاد آتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو مشکل پڑتی ہے نا، جب کہتے مولا آ جاؤ، یہ دھوکے والے، یہ ڈھونگی چاہنے والے ہیں، یہ فریبی چاہنے والے ہیں۔ جب خود کے دل پہ مصیبت آتی ہے تو امام کو یاد کرتے مولا زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ زمانہ کس لیے خراب ہوا؟ آؤ علی سے پوچھتے ہیں، نہج البلاغہ میں پوچھتے ہیں زمانہ خراب کیوں ہوا ہے؟ علی کہیں گے زمانہ ان لوگوں سے خراب ہوا ہے جو لوگوں کو برا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی تنبیہ نہیں کرتے، بلکہ اچھوں کا ساتھ دینے کے بجائے بروں سے ڈر کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ خاموش تماشائی جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خاموش، یہ اثر فساد کی جڑ ہوتے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، ایک بیچ کی ٹیڑھی راہ پہ جاتے ہیں، اور یہ زیادہ لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ انقلاب میں آ جائے تو برے بہت تھوڑے ہیں، جو برے ہیں ان کا ساتھ اگر نہ دے، یہ اچھے لوگ جو زیادہ تعداد میں۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگوں کے لیے مولا حسین نے خود جملہ کہا ہے کہ جو ریولیوشن لانا چاہتا ہے، جو انقلاب لانا چاہتا ہے، جو چینج لانا چاہتا ہے معاشرے میں، اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اسے تنہا کر دیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے زمانہ
नज़र अंदाज करता है, अच्छे का साथ नहीं देता। हाँ, वो गुंडे से डर जाएंगे, चाकू से डर जाएंगे, ज़बान की गंदी से डर जाएंगे, बुरे लोगों से डर जाएंगे, लीडरशिप से डर जाएंगे। और इमाम हुसैन कहते हैं लीडरशिप वो होती है जो नूर की तरफ तुम्हें लेके जाए, लीडरशिप वो नहीं जो बुराई। और सूद खाना और सूद लेना जितना बराबर है, गीबत करना और गीबत सुनना भी उतना ही बराबर है। और बुरे का साथ देना, वो इसलिए हम ज़रत आशूरा में क्या पढ़ते हैं, वशाइयात व बाइयात व ताबियात अलखतिया लहुम अलैकुम जमिया, कहते तो हैं हम, लेकिन हम समझते नहीं हैं। बुरे को देख के खामोश बैठ जाए तो हमने हुसैन को समझा ही नहीं। देखिए आज इसको आसान तरीके से समझना है तो ज़रा ईरान को देखें। ईरान बता रहा है हाथ में नज़िल्ला कैसे होता है, ईरान बता रहा है कि करबला को कैसे ज़िंदगी में नाफिज किया जाता है। हमारे पास तो बहुत कुछ हो गया और होगा भी और हो रहा है भी, लेकिन हम इतने सारे होते हैं, हम एक जा नहीं है। हम खुद बाजू घर में अगर लड़ाई होती है तो मज़े लेते हैं। सलवात पड़ेगा हम मैदान के गाजी नहीं है, लफ्ज़ों के गाजी है। इकबाल कह रहे हैं मैदान का गाजी बन न सका जो मैदान का गाजी बन जाए। ज़बानी लफ्ज़ से मौला हुसैन को खुद इमाम ज़माना को ऐसे आशिक लेके क्या करेंगे जो खाली करे मौला आ जाओ, कुछ तैयारी नहीं है, खाली आ जाओ आ जाओ। हम जैसे नौकरों को कनीज़ों को बुलाने के लिए आप लोगों ने कितनी तैयारी की, जो बुलाए हमको मालूम है 3-4 दिन से उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, कितनी तैयारी की जिक्र मौला के लिए। और जो मौला हुसैन के खून का इंतकाम लेना है और लेने वाला है, और जिसकी याद हमारे जहन के अंदर एक रोशनी की किरण है, जो याद मारिफत के साथ, याद अमल के साथ और याद गफलत के साथ, दो है याद करने वाले। अब मैं और आप किस कैटेगरी में हैं, इस पहली मजलिस में हमें चेक करना है हम कितना जुड़े हुए होते हैं। 24 घंटे में जिस बंदे को एक बार भी मौला याद नहीं आए, उसने अपना खाना हराम किया, उसने अपना पीना हराम किया। जो मालिक है उसको भूल गए, जो अल्लाह तक पहुंचने का जरिया उसे भूल गए, और जिंदगी गुजार रहे हो याद भी नहीं आती। याद क्या है? देखिए पहले तो हम है मोहिब, हम शिया तो है ही नहीं, क्योंकि औसाफ शिया जो बुक है आप पढ़ेंगे तो एक भी हमारे अंदर नाम के अंदर। और सब शिया बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। हम है मोहिब को मैं अक्सर दर्स में हमारे क्लासेस चलते हैं तो मैं कहती हूँ मोहिब कौन, तो मैं अपने अल्फाज में, किताब के अल्फाज में कहती 50-50। जब चाहा दुनिया का हो गया, जब चाहा दीन का हो गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना पूरा इस्लाम ही फॉलो किया, बस इधर उधर जब चाहा। जैसे दीन को आपने एक बीन बना रखा है, जितना दिल में आया कभी ये कभी वो नहीं। पहले हमें इस्तिकामत पैदा करनी चाहिए हमारे दिल के अंदर। पहले हम कहाँ बाहर के दुनिया को सुधारने से पहले इनकलाब अपने नफ्स पे लाएं। पहले हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, इतना पाक बनाए कि हमारे मौला से हम जुड़ जाएं। मौला से जुड़ना बहुत आसान है, दुनिया वालों से जुड़ना मुश्किल है। ये जब ज़रूरत पड़ती है तो जुड़ा लेते हैं, ज़रूरत निकलते ही पहचानते ही नहीं। लेकिन हम फिर भी इनसे जुड़ना चाहते हैं। ऐसे बेवफा लोगों से हम जुड़ना चाहते हैं। फ़ोन है ही इसलिए कि दुनिया से जुड़ा रहे। फ़ोन को थोड़ा दूर रख के कोशिश करें कि हम कुरान से जुड़े। आप जितने बार चाहें ना आपका मौला आपको देखेंगे। इमाम ज़माना वाले से कुरान है, जितनी बार आप कुरान को छुएंगे ना इमाम ज़माना उतनी बार उनका आई कॉन्टेक्ट आपके बदन पे पड़ेगा। आप जब आप वो कितने बार आपको देखेंगे जितने बार आप कुरान को पढ़ेंगे। और कुरान खुदा मुझे और आपको इमाम ज़मानी और कुरान ही बना दे। किताब अल्लाह वही तरह 2 गिरा कदर हम वज़न, ऐसे करके बताया था 2 हम वज़न हम गिरा। और आज हमारा ये आलम है बिलखुसूस ख़वातीन का माजरत के साथ। हम ये कहते हैं हमें क्या करना है, वो 313 तो मर्द होंगे, वो आएंगे, वो देखेंगे, हमें छुट्टी दे लेते हैं हम अपने आप को। और हमें तो कुछ करना ही नहीं है, अब जो चाहे करो। अब जैसे स्कूल में ना टीचर नहीं है तो कोई मॉनिटर होता है ना, अगर नहीं है तो क्लास का जो उधम है ना, तुझ बिन लगे है सल्तनत दिल बुझी बुझी, मौला मौजे रवा को कुव्वत साहिल बुझी बुझी, तेरे बगैर लगती है महफिल बुझी बुझी, जो तू नहीं तो बिगड़ा हुआ ये निज़ाम है, आजा तेरे बगैर ये जीना मुहाल, आजा तेरे बगैर ये जीना मुहाल है। साकी तू आके 14 मैं खानों से शराबत तबूरा पीने वाले लोग हम हैं। साखी तू आके देख कभी मैं कदे का हाल, बिगड़े हुए हैं नूरी तमद्दुन के खदोखाल, सलमान है न खम्बरो बूजर न है बिलाल, जो तू नहीं तो बिगड़ा हुआ ये निज़ाम है, आजा तेरे बगैर ये जीना मुहाल है। जब माँ बाप घर में हो, छोटे बच्चों आपके लिए मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, जब अम्मी बाबा घर में हो तो आप डिसिप्लिन से रहिए, कोई कमाल ही नहीं है। वो कहीं गए 2 घंटे के लिए, तब आप जहाँ की चीज़ वहाँ रखो, ये कमाल है। इमाम अगर नजर आ रहे हो तो कोई कमाल नहीं कि हम सुधर जाए। इमाम पर्दे गैबत में हो और महसूस करें कि मेरा मौला मुझे हर जगह देख रहा है, ये कमाल है।
اسی لیے ہمارا جو ثواب ہے، اگر ہم سدھر جائیں نا، اگر ہم عملی منتظر بن جائے تو ہم ایک منتظرہ، ایک ناصرہ، ایک سچی کنیز امام زمانہ، ایک امام کی خاطر گناہ سے دور ہونے والی، ایک امام کی خاطر دوسروں کو برداشت کرنے والی، ایک امام کی خاطر اتنی گرمی میں برقعے کو برداشت کرنے والی، ایک امام کی خاطر کچھ کرنے والی۔ کل کی بھی میں ایک بات بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں، اس کا جو ثواب ہے نا ایک نبی کے برابر ہے، ایک نبی کے برابر ہے۔ ایسی نہیں ہے، اللہ بھی انتظار جس کا کر رہا ہے اور ہمیں بھی وہ انتظار کی کوشش کریں۔ یہ ٹاپک جو ہے جب میں پہلے پڑھتی تھی تو لوگ مجھے حیران دیکھتے تھے، یہ کون سا ٹاپک آ گیا؟ 11 معصومین کو اگر خوش کرنا ہے تو یوسف زہرا کا۔ سبحان اللہ، بے شک آپ کسی سے بھی مانگیں گے، پوری ذمہ داری ممبر کی قسم اٹھا کے لینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ غازی سے مانگیں گے، غازی امام زمانہ کو بولیں گے۔ آپ علی سے مانگیں گے، علی امام زمانہ کو بولیں گے۔ آپ سیدۃ النساء عالمین سے مانگیں گے، وہ بھی کیونکہ حجت خدا اس وقت کا دینے والا ہاتھ امام زمانہ کا ہاتھ ہے۔ جو مانگنا ہے امام زمانہ، جتنی باتیں کرنا ہے۔ اب یہ زمانے میں لوگ بہت بزی ہو گئے، سب کو پاس ٹرین میں بھی میں یہی دیکھ رہی تھی کہ جو کچھ کام والی بات نہیں، سب لوگ اپنا لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم وہاں ہے جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ ہو گئے ہیں، کھونا تھا قرآن میں امام زمانہ کی یاد ہے، لیکن ہم موبائل میں کھو گئے ہیں، اسی میں ڈوب گئے ہیں۔ کوشش کریں جو ڈوبنا ہے ڈوب جائے، ساری دنیا ڈوب جائے۔ بھائی شیعہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ویکلی 2 ٹائمس ہمارا لائف ورک جاتا ہے۔ کتنوں کو گرا کے دیکھا، کتنوں کے لیے گندے، اوپر سے اچھے رہ کے اندر سے کتنے، اوپر سے اچھا انسان اگر اوپر سے تھوڑا خراب بھی ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، اس انسان کو کیا کہتے ہیں؟ غصے والا کڑوا انسان ہے، اسٹریٹ فارورڈ بولتا ہے پھر بھی وہ اچھا ہے۔ وہ انسان بہت ڈینجر ہے جو اوپر سے میٹھا ہوتا ہے لیکن اندر سے بہت زہریلا ہوتا ہے، لیکن بتا نہیں سکتا۔ اوپر سے میٹھی میٹھی باتیں اور اندر سے، اسی کو تو ابلیسیت کہتے ہیں۔ اندر سے کچھ اور، اوپر سے کچھ اور۔ یہ ریاکاری کیوں؟ جیسے ہو ویسے بنو، اندر اتنا صاف کرو کہ امام زمانہ کی محبت دل میں آئے۔ امام ہر مومن کے دل میں ہے، خدا بھی ہر مومن کے دل میں ہے۔ خدا ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہمیں سینس نہیں، ہمیں شعور نہیں۔ ہم انسان بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ نہیں کرتے، ہم کسی کا پرس گر جائے نہیں اٹھاتے، کسی کی کوئی گولڈ کی چیز گر جائے ہم نہیں اٹھاتے۔ بچہ دیکھے گا بول دے گا، لیکن وہ ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس کا CC کیمرہ تو یہیں لگا ہوا ہے، سب کچھ ہوگا ریکارڈنگ، اس کا مینول بھی ہے۔ مینول کون؟ یہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج کل تو جب سے موبائل فون آئے، یہ بیچارہ لکھ کے قلم ٹوٹ رہا ہے، اس کو بہت کم سلوات پڑے گا۔ کبھی ہو کے تو دیکھو، اور جو صبح سے شام تک جڑتے ہیں ممبر کی بلندی سے، انہیں سلام ہے کہ وہ اپنے وقت مولا، وقت کے امام، وقت کے حسین، وقت کے علی، وقت کے پورے 13 معصومین کی جھلک لیے ہوئے، جو یوسف زہرا، امام زمانہ، مہدی مولا، جن کے لیے اتنی ساری ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی، لیکن افسوس کے ممبروں سے بہت کم ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب آپ سے ایک درخواست ہے میری، آپ کے پاس جتنے مجالس ہوں گے محرم میں، آپ اپنے ذاکرہ سے کہنا کہ تھوڑا ذکر اس کا کریں جو آتا ہے پوسا لکھنے، اس امام کا ضرور کروائیں آپ، تاکہ مجلس قبول ہو جائے۔ امام کو بلا کے نظر انداز کی، اگنور نہ مارے امام کو۔ نظر انداز اگر کسی کو بلا کے کرتے ہیں تو وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، نظر انداز نہ کرے اپنے وقت کے امام کو۔ اب آئیں رسول اکرم نے کیا فرمایا۔ عورت، ہم کہتے ہیں اکثر یہ بحث ہوتی ہے نا کہ مرد ہوں گے، مرد حضرات ہوں گے، عورتوں کا کیا ہے۔ آج میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ نوجوان مجمع میرے سامنے ہے، عورتوں کی زیادہ ذمہ داری ہے مردوں سے۔ کیوں کہ 313 عورتیں ہی تو پالیں گی مردوں کو، اور 50 خود خواتین ہوں گی جو 313 کمانڈر ہوں گے نا، اس میں سے 50 ہوں گی، یہ علیحدہ 50 ہوں گی، 2 الگ الگ روایتیں ہیں۔ 50 لیڈی کمانڈر ہوں گی، اور آلریڈی ان خواتین نے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے حجت خدا کے ساتھ وفا کی، وہ مہدی مولا کے ساتھ لشکر مہدی میں آئیں گے، جس میں نصیبہ خاتون ہے، ام عمارہ ہے، جس میں ام یمن ہے، نصیبہ ہے، حسیبہ ہے،
और शिया नमास्ता है, ये सारे लोग, इन लोगों ने अपने अपने दौर में अपने हुज्जत खुदा, अपने उस दौर के जो भी नबी थे, और ये जो आएगी उम्मे फरवा मौलाए कायनात की सच्ची कलीस, उनको भी जाम शहादत के बाद अली ने कब्र से उठाया था। जो अपने हुज्जत खुदा से वफाशियार हैं वो फिर से दोबारा जिंदा होंगी और लश्कर मेहदी में आएंगी, क्योंकि अल्लाह हुज्जत खुदा से उल्फत को कभी फरामोश नहीं करता। बीबी फिजा, अगर मैमुना जिनका नाम था, अगर वो हबश में रूलिंग करती हुई शहजादी बन के रह जाती तो आज तारीख से वो महफूज हो जाती। सब छोड़ के खड़ा में मिंबर पे रख के आके अहले बैत के घर में बर्तन धोई, लोग हंस के चलाने लगे, तुझे क्या हो गया, नौकर चाकर छोड़ी और आके यहाँ बर्तन धो रही है, मुस्कुरा के कहती है तुम्हें क्या मालूम मैं किसके बर्तन धो रही हूँ, मैं जवाना ने जन्नत के सरदार के बर्तन धो रही हूँ, मैं जन्नत में हूँ, मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं है। तो क्या बता रही है हमको कि ये बता रही है कि देखो अगर हुज्जत खुदा से जुड़ना है तो दुनिया की जो भी अपोजिशन में है ना उसकी गुरूर पे मुब्तला ना हो जाए, ठुकराएं। हुर ने लश्करे यजीद की कमांडरशिप को ठुकराया और गौर किया, लानतुल्लाह बनते बनते अलैहिस्सलाम बन गए। हरकत, फिजा भी हरकत कर रही है, अपना मुल्क छोड़ रही है, अपने इख्तिदार छोड़िए, नौकर चाकर छोड़कर तरह हम कब हरकत करेंगे, हम कब गीबतें छोड़ेंगे, हम कब बेहिजाबी छोड़ेंगे, हम कब लोगों के ऊपर जुल्म करना छोड़ेंगे, अब हम कब माल की मोहब्बत छोड़ेंगे और मोहब्बत इमाम ज़माना में खूब सदा करेंगे, कब हम अपने मौला को ज़िंदगी में जगा देंगे, तसव्वुरात में जगा देंगे, हमारी आँख कब उनकी मुंतज़िर बनेगी, हमारी कान कब जाल हक़ ज़ाक़ल बातिल इन्ना काना बातिला ज़हूक़ा सुनने के लिए बेचैन होंगे, हमारी ज़ुबान पे कब उनके तज़किरे आएंगे, हमारे दिल में कब उनकी मोहब्बत उतरेगी। पहले हम मुहिब बने, ये कैटेगरीज है, पहले हम क्या है, मुहिब है। शिया तो वो तो कौम में कहती, दुनिया में कहती, हम शिया की सिफ़ात हमारे अंदर एक नहीं है अज़ीज़ों, हम सिर्फ मुहिब है, चाहने वाले। हाँ, अगर इस पे हम काम करेंगे ना, अगर हम इस पे गौर करने लगेंगे कि एक मुहिब, तो हम जाके सीधा शिया में गए। दूसरा स्टेप क्या है, क्या है दूसरा स्टेप, शिया। जो लाशऊर है वो क्या है, मुहिब। जिसमें शऊर आ जाए, शिया। अब शिया अपने शिया होने के फराइज़ को निभाए और अमली शिया बन जाए तो फिर वो आशिक बनता है, जैसे फिजा है और कलंदर है, आशिक बनता है। और इश्क की मंजिलें हैं, इश्क के बाद क्या मिलता है, मारिफत नसीब होती है। और खुदा ने मारिफत भी नहीं, खुदा ने कहा कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे विलायत अली वलीउल्लाह, नारे विलायत अली वलीउल्लाह। लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, नारे हैदरी या एक हाथ बुलंद करके इमाम ज़माना को गदीर, क्योंकि महीना गदीर का करीब है, एक हाथ बुलंद करके इमाम ज़माना को गदीर की याद दिलाने के लिए नारे हैदरी। क्योंकि गदीर में रसूल के दो हाथ उठे, ये वफा नहीं है। और आपकी कोई हाजत मुसल्ले पे रोज़े की हालत में भी कबूल ना हो, जब आप हाथ बुलंद करें वक्त इमाम, आप दिल से दुआ करें, ये हाथ बुलंद हो गया, सदका दो, आपकी हाजतें पूरी होती है। या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, गैब से आओ, अज्जल मौला, गैब से आओ, अज्जल मौला, गैब से आओ, अज्जल मौला, पर्दा उठाओ, अज्जल मौला, पर्दा उठाओ, अज्जल मौला, काबे में आओ, अज्जल मौला, काबे में आओ, अज्जल मौला, ज़ियारत कराओ, अज्जल मौला, ज़ियारत कराओ, अज्जल मौला। नारे हैदरी या कि औरतों की जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा है, मर्द से भी कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है। और क्या होगा, औरतें जो 50 कमांडर रहेंगी ना, उसके नीचे फिर 1600 दस्ता एक ख़वातीन का रहेगा। कमांडर 50 के नीचे 1600 और ख़वातीन का दस्ता रहेगा जो उनकी 50 की सपोर्ट करेगा। उसके बाद नासिरा आएंगी जो 16,000 तक होंगी। तो हमें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं कि हम कैसे, शैतान का पहला जाल, पहला हमला ख़वातीन के नाजुक जहनों पर यह होता है कि तुम तो औरत हो, वो तो मर्द जाएंगे। दूसरा हमला ये होता है कि 313 में तुम कहाँ आओगी, 313 में तुम कहाँ। अब हम कहते हैं अब क्या काम करना, आना ही नहीं है, सर बात पड़ेगा।
कि हमें थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, सबसे लास्ट लाइन में रहने के बजाय कोशिश करके मिडिल में आना, ताकि जब ज़हूर इमाम ज़माना हो तो यूसुफ ज़हरा के जमाल की दिल भर के ज़ियारत हो जाए। अजीज़म, रसूल अकरम की एक और हदीस है कि हुब्बे दुनिया जो दुनिया का हुब होता है ना, हुब्बे दुनिया मोहनिस माने वुमेन, दुनिया का जो मोहब्बत नहीं, क्योंकि मैं इंतजार इमाम ज़माना की समरात को और उजागर करना चाहती हूँ। रसूल अकरम ने फरमाया हुब्बे दुनिया मोहनिसुन, हुब्बे आखिरा क्या है? मुखलिस कहते हैं ना, मिडिल, ना मैन ना वुमेन, बीच की जिन्स। जो दुनिया का तलबगार है वो औरत है, चाहे वो मर्द क्यों ना हो। सलवात पढ़े जो तलब दुनिया, ख्वाहिशात दुनिया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अब जो ये निकल गए हैं ना दुनिया पे, दिल फिसल जाता है, इतना गिर गया कि यहाँ तक दलदले दुनिया में फंसे हुए हैं। अब वो सर है, वो कैसे निकलेगा बाहर, या वो भी चले जाएगा, नहीं मालूम। कहा कि जो दुनिया का तलबगार होता है वो क्या है? मानिस, चाहे मर्द हो चाहे औरत। लेकिन जो आखिरत का तलबगार होता है वो क्या है? मुखलिस, यानी मिडिल, न मर्द न औरत। लेकिन जो हुब्बे मौला होता है, तालिबे मौला होता है, तालिबे हुज्जते खुदा होता है, जो अपने इमाम का आशिक होता है, जो अपने इमाम से कनेक्ट होता है, कहा वो क्या है? मुज़क्किर। हुब्बे मौला मुज़क्किर, यानी हर कोई औरत है और अपने मौला के लिए काम करती है, और कोई मर्द है वो अपने मौला के लिए काम नहीं करता। इसलिए कहा कि मर्द और औरत नहीं, जिसका तक़वा ज्यादा बुलंद है वो अल्लाह की निगाह में बुलंद है। इसीलिए जंग ओहद में उम्मे अम्मारा के बेटे से उम्मे अम्मारा कहते हैं अम्मार की माँ को, कहा रसूल अकरम ने आज तुम्हारी माँ का किरदार वो भागे हुए हजारों मर्दों से बेहतर है। आज तुम्हारी माँ का, क्योंकि वो भाग गए थे मर्द होकर, लेकिन उम्मे अम्मारा एक एक को बुला लेती है, अरे आओ रसूल को छोड़ के ना भागो, 13 ज़रबें लगी थी, इसीलिए वो लश्कर महदी में आएंगी। पता चला कि दुनिया को भी छोड़ना पड़ता है और जख्म उठाने की बदन को आदत होनी पड़ती है, तब लश्कर महदी में आने की लायक बनते हैं। दुनिया की आदमी आप देखते होंगे, खैर हमारी ख़वातीन तो नहीं जाती क्योंकि हिजाब का मसला हो जाता है, लेकिन दूसरे मज़हब के ख़वातीन जाती हैं, मर्द भी जाते हैं। दुनिया की आर्मी और मेहदी की आर्मी दोनों को समझ लें, ताकि हम अलर्ट हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट हो जाएं हम। जो औरत ना एवरी मॉर्निंग उठती है ना, सलाम है उसे मेंबर से, क्योंकि यही मस्तूर होंगी जो सुबह उठने वाला मर्द हो चाहे औरत हो, मोमिन हो चाहे मोमिना हो, सुबह उठने वाली कोई जुम्मे के दिन की सुबह वो ज़्यादा ज़ाक़ल बातिल की आवाज़ आएगी। जो मज़े लेके सो रहे हैं ना, उनको बड़ा महंगा पड़ेगा, लेट उठना बड़ा महंगा पड़ेगा। क्योंकि दुनिया की आर्मी में आने के लिए 4 बजे 3 बजे घर छोड़ो, सामान बोरी अपना फील्ड पे ला दो, बड़ा सा बैग फैला और जाओ, और 4 बजे रात से भागो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हो, फिटनेस कूदो करो, दुनिया भर का। एक दुनिया की आर्मी लेजी फिल्लों को नहीं कबूल करती, मेहदी मौला की आर्मी कैसे कहती? तो मौला की आर्मी में आने के लिए प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तैयारी बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा बच्चे, और ये भी इम्तिहान हुआ है, आप लोग बहुत मजे में समर वेकेशन में हैं। जो बच्चा तैयारी करता है शुरू से वो टॉपर आता है, और जो बीच में तैयारी करता है वो सेकंड क्लास आता है। जो 3 महीने जो 6 महीने गुजरने के बाद तैयारी करता है वो 3rd रैंक आता है। जो एग्जाम से 8 दिन पहले किताब खोलता है वो जस्ट पासिंग होता है। जो एग्जाम के दिन खोलता है वो फेल हो जाता है। इसी तरह जो शुरू से शऊर से अपने इमाम के लश्कर में आने चाहते हैं, कोशिश ही तो रंग लाती है ना। रंग लाएगी ना पत्थर पे पिस जाने के बाद, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। एक सीड, स्मॉल सीड जब जमीन के हवाले में, जमीन के सीने में डाला जाता है वो स्मैश हो जाता है, उसको तक वो तो स्मैश हो गया, लेकिन ये स्मैश होना उसको एक लहराते हुए दरख्त और तमाम इतने सारे फल फूल, एक सीड से हजारों फल देता है वो। तो इंसान भी अगर दूसरों के लिए, इसलिए कहा परवरदिगारा हमारे वजूद को बाबरकत बना, हमारे वजूद को लोगों के लिए। अक्सर ये आजकल ये हमारी कौम में, माजरत तो हाथ जोड़ के, हमारी कौम में ज़्यादा लेज़ी फिल्लो ख़वातीन पैदा हो रहे हैं। शौहर की खिदमत नहीं करेंगे, ज़्यादा काम दूसरों में डाल के, ये स्मार्ट नहीं है, ये चालाक लोमड़ी है जिसे इस्लाम पसंद नहीं करता। अपना काम खुद करो, लोगों का काम भी खुद करो। अगर तुम लश्कर मौला जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा, जो खानदान का बोझ नहीं उठा सकते वो आर्मी में कैसे आ सकते?
اتنی کمزور عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ جس گھر میں مرد میں کامیاب ہے نا، کس کی وجہ سے ہے؟ اگر آج مکہ لائق حج ہے تو سلام ہے ہاجرہ کو، اگر آج کربلا لائق جنت ہے، فرشتوں کو اترنے کی جگہ ہے اور تمام عاشقوں کی منزل ہے تو سلام ہے زینب عالیہ کو۔ عورتیں اسلام میں ہر جگہ ہے۔ اگر آج اسلام کا بول بالا ہے تو سلام ہے بی بی خدیجہ کو، جس کا مال نہ ہوتا تو یہ بھوک مری میں کون اسلام قبول کرتا؟ تو عورت اسلام کے لیے عورتوں کا بڑا مقام ہے، اور اسلام ہی نے عورت کو ریسپیکٹ دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر فاطمہ الزہرا کے صدقے میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے کہا ماں کی، اگر ماں یونیورسٹی ہے، ماں بچوں کے لیے، اسی لیے کہا جب بہو لانے کی کوشش کرو تو سیرت دیکھو، صورت نہ دیکھو، اچھی سیرت دیکھ، اچھی صورت نہ دیکھ، سنکیاں بھی سفید ہوتی ہے۔ ویری ڈینجرس پوائزن از ویری وائٹ۔ اچھی سیرت دیکھ، اچھی صورت دیکھ، اور یہ مت سوچ کہ تو پتلی لا رہا ہے کوئی شاپ پہ بٹھانے کے لیے، یہ دیکھ کے نسلوں کی ماں لا رہا ہے۔ جب نیت اچھی تو سب اچھا۔ اکثر جو زندگیوں میں ڈفرینسز آ رہے ہیں، بالخصوص ہماری قوم میں کیونکہ میرا جو ہے میرا کنیکشن جو ہے شیعہ قوم میں مجلسوں کے حد تک ہے اور دوسرے کچھ معاملات درس وغیرہ، لیکن میں سارا دن ہندوؤں کے ساتھ آفس میں سسٹم آپریٹر ہوں عثمانیہ یونیورسٹی میں، ہندوؤں کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہاں 4 بجے صبح ہوتی ہے عزیزم، اور ہمارے پاس ہمارے حیدرآباد میں تو صبح بہت ڈیلے ہو رہی ہے آج کل، نماز پڑھ کے بالکل گلیاں پورے سنسان ایسا لگ رہا ہے، اور رات میں جاؤ تو دن، اور دن میں جاؤ تو رات، اور ان کے پاس شوہر کی اطاعت 1 لاکھ تنخواہ کما کے پاؤں پڑے گی، اور ہمارے پاس 2 روپے نہیں کمائیں گے، 20,000 روپے مہینہ تو اڑائیں گے میک اپ پہ، کپڑوں پہ، شاپنگ پہ۔ ہماری قوم جو ہو رہی ہے بالکل ریاکار ہوتی چلی۔ ہم کنیزان زہرا، بی بی نے پیوندار لباس پہنا، ہم تو اگر ہم کمپیئر کریں نا، خدا نے ہمیں کس کی جو سب کچھ قربان کر رہی ہے، جھولے والا بھی قربان کر رہی ہے دین کے اوپر، بابا کو قربانی دیتا ہوا دیکھا، خود قربانی دی، شوہر کو قربانی دیتا ہوا، بیوی کو پتا ہے شوہر کی کیا کیا قربانیاں ہونے والی ہیں، امام حسین کی شہادت کیسے ہونے والی، بیوی کی اگر ہم کنیز ہے تو ہم نے کیا قربان کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم چاہتے ہیں دربار میں آ کے مولا یہ دے دو، مولا سب سے بڑے انٹرنیشنل فقیر ہم ان کے دربار کے بنے ہوئے، یہ دے دو وہ دے دو۔ ایک کوئی ایسا ہے جس نے جا کے ایسا خانے کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مجھے قبول کر لو، مولا مجھے آپ پہ کرنا ہے، مجھے لشکر مہدی میں آنا ہے، مجھے آپ کی آرمی میں آنا ہے۔ اگر آپ تمنا نہیں کریں گے، اگر آقا جان سید علی خامنائی کی تمنا نہ ہوتی کہ وہ شہید ہو جائیں تو انہیں شہادت کبھی نہ ملتی۔ تمنائیں ہیں جو رنگ لاتی ہے۔ دنیا کے لیے کام کرو گے، دنیا مل گئی، حساب دینا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی پوزیشن مل گئی، ایک گھر پہ کون ٹکتا ہے امیر؟ جب غریب تھے تو اچھے بھلے تھے، لیکن مال آ گیا تو بلندی پہ غرور سے گردن پہ سے دیکھتے ہیں بلند جگہ۔ عزیزاں بلندی پہ بیٹھنے سے انسان بلند نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے بلند ہوتا ہے، انسان اپنے عمل سے بلند ہوتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے انسان بلند نہیں ہوتا، بڑے بڑے کام کرنے سے انسان بلند ہوتا ہے۔ انسان کو سب سے بڑی بات، انسان کو اپنی انسانیت کے اقدار کو دیکھنا چاہیے۔ آج انسان کہاں کیا خوبصورت شعر میرے ذہن میں وقت پہ آ گیا ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا سانپوں کو سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ بچیوں کے لیے بھی ایک شعر کہہ دوں، یہ بڑوں کے لیے تھا لیکن یہ لوگ سن رہے ہیں اچھی لحاظ سے، یہ بچیاں سن رہے ہیں۔ جس نے بنائی تھی یہ 2 آنکھیں، جس نے بنائی تھی یہ 2 آنکھیں، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی، اسی کو چھوڑ کے انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ جب سے یہ ترقی نے انسان کو دیوانہ بنایا ہے نا، ترقی نے انسان ترقی دنیا میں تو کیا لیکن دین میں پستی میں گرتا چلا جا رہا ہے، پستی۔ پہلے لوگ دیکھیے، پہلے لوگوں کے گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، اب اور لوگوں کے گھر چھوٹے بھی ہوتے، یا بہت پہلے تو بڑے ہی گھر ہوتے تھے، دل تو اس سے زیادہ بڑے ہوتے تھے۔ پہلے گھر میں عورت بالکل گھر کے ماحول کو سنبھالتی تھی، زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن پتہ ہے جھاڑو دینا، صحن کعبہ میں دینا ہے، شوہر کو پانی پلانا، کم سے کم 1 سال عبادت ہے، بچوں کی خدمت کرنا، ایسے وہ کم پڑھی لکھی عورت 10-12
बच्चों को ऐसे अपने मोहब्बत की चादर उड़ाती थी, इशारे से बच्चे समझ जाते थे है पढ़ी लिखी और तो तुम्हें क्या हो गया, दो नहीं पाले जाते, दो नहीं पाले जाते। वो मोबाइल फोन बेचारा पालता है बच्चों को, खाना भी वही खिलाता है, सुलाता भी वही है, आंखों पे ऐनक भी लग रही, माजरत में किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, फिर हाथ जोड़ रही हूँ, लेकिन ये दर्द दिल है हमारा। ये दुनिया वाले कर रहे हैं ना, क्या हम अपने बच्चों को आंखों का अंधा, गर्दन का टेढ़ा और ज्यादा देखने से उठते और गिरते हैं बच्चे, उठते और गिरते हैं। अपाहिश को दुनिया की आग में कबूल नहीं करती, तुम्हारी गोलियों में लश्कर मेहदी के सिपाही है। औलाद मांगो तो इनके ऊपर कुर्बान करने के लिए मांगो। जवानी है, इताअत रब और मोहब्बत इमाम ज़माना के, इनके इश्क में डूबने के बाद सबसे मोहब्बत करो तो मज़ा ही कुछ और है। शौहर के लिए वक्त, औलाद के लिए वक्त, हर काम के लिए वक्त, इमाम ज़माना के लिए वक्त नहीं। पूरी सुबह से शाम हो जाती है, सुबह उठें, बच्चों के लिए, बड़ों को सब पता है, सुबह उठें जैसे हालत में अस्सलाम वालेकुम मौला ऐसा है, कैसे कैसे जोड़ें, रुपया 2 रुपये 100 रुपये जितनी आपकी हैसियत है, मौला आपकी सलामती का सदका निकालो, वीकली निकालो, डेली निकालो, महीने में निकालो, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें जोड़ती हैं। जब गुनाह करने, जब फोन पे हो चाहे घर में हो, गुस्सा, सबसे बड़ी बात औरतों को ज्यादा गुस्सा आता है मर्दों से भी ज्यादा। ये मेरा अपना तजुर्बा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि ऑफिस में और बाहर काम करते करते मैं पूरा एनालिसिस करते रहती हूँ। तो मुझे अगर मैं मर्द को बोलो गुटका नहीं खाओ, जाके मैडम थूक के आएगा, वो कुल्ली करके आएगा, मैडम अब से नहीं खाऊंगा मैं। औरत को बोलो तो और 2 गुटके आके मुंह पे थूक के जाएगी सामने। मर्द को बोले कि देखो ये होगा वो होगा, जरा तो फिर भी समझता है मर्द, लेकिन औरतों को बोले तो लड़ने आ जाते हैं। मैं दोनों के लिए काउंसलिंग करती हूँ, लड़ने आ जाते हैं। और औरतों को गुस्सा, और बिलखुसूस ये औरतों का गुस्सा माँ के शिकम से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। मेरी बात की तस्दीक कर लेना, अपने अपने घरों में छोटे बच्चे अगर हैं, सबसे ज्यादा वो छोटे बच्चों को गुस्सा है। पूरे घर दादी नानी मामा बाबा चाचा चाची पूरा हैंडल करें, नचा रहे 2 साल के बच्चे। पूरा कंट्रोलिंग पावर जो है वो छोटे छोटे बेबीज में है। वो जो बोले टीवी में जो लगाना है वही लगना, वो जो खाना खाएंगे खिलाना है वही, नहीं तो थूकेंगे मुंह पे खाना। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए आप कैसे हो गए हैं। हमारे दौर था, हमारे दौर जो भी 50 प्लस 40 प्लस के, हमने शौहर माँ बाप की इताअत की, शौहर की इताअत की, बच्चों की भी बहुत अंडरस्टैंडिंग से की, अब पोता पोती की भी करना है बात। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज के जो जवान हैं, वो लोग कितने सेल्फिश हो गए। वो किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, वो अपने लिए जीना चाहते हैं। और अपने लिए जीने वाला जो है गुस्से के जरिए अपनी जो हुकूमत करने वाला, ये दरहकीकत ये ईगो जो होता है ना, ये साइको, ये बीमारी है। जो असल साइको है मैं आपको बता रही हूँ। साइको क्या है? काम चोरी है। साइको लफ्ज आप लोग बार बार सुनते हैं ना, आईदी फेलों को कुछ नहीं आता, दीवाने शाने चीखा चीख कर काम से भागना आता है। और तो क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं ना वही जिगरदार होते हैं। इसके लिए मैं एक मिसाल भी दूँ, आप एनालिसिस करके देखिए, बिल्ली 4-6 बच्चों को पाल देती है एक ही बार में, और कितना अच्छे से अल्लाहु अकबर गिरता है तो उठा उठा के लेके जाती है। जब उनको देखेंगे ना, वो सेंस नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो उसके बावजूद वो 4 है, एक वक्त 4 कम से कम हम पढ़े लिखे समझदार, शौहर साथ दे रहा है, सास साथ दे रही है, अम्मा साथ दे रही है, फिर भी 1-2 पाल कर हम इतना ईगो जो होने के बाद एटीट्यूड ही नौजवान बच्चियों का बदल जा रहा है। एक पैदा करते ही दुनिया में किसी ने औलाद पैदा की या नहीं की। देखिए ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब छोटी छोटी बातें हमें खराब इंसान बना देती हैं। हमारे पहले बहादुर वो नहीं जो दूसरों को खूब सुनाए, बहादुर वो है जो अपने अंदर की पहले सफाई करे। हमें बहादुर बनना है, हमको सोचना है, ये रात सोचना है मुझे और आपको, अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या गंदी एरर आ गई है कि मैं अपने मौला को अभी तक देख नहीं पाई। मौला मैं उसे मिटाऊं ताकि मेरे मौला को मैं देख सकूं। मेरी आंखों ने ऐसी क्या खयानत की कि मेरे मौला मुझे नजर नहीं आता। मेरे दिल ने ऐसा क्या किया जो मेरा दिल उनकी याद के लिए तड़पता नहीं है। मेरी जुबान पे कब अलजल आएगा, उठते बैठते नमाज में, दुआ क़ुनूत में इमाम के लिए किस कदर हम इमाम से जुड़ सकते हैं। बल्कि ये भी है, दस्तरखान पे बिछाओ तो इतना खुम्स देने के बाद वो रोटी पाक होती है, पसीना टपकाने के बाद नहीं सलवात पड़े मोहम्मद। याद है मौला से बस जल्दी बहुत टाइम हो गया तो मैं माजरत चाहती हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, सबका मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी शाहिदा फौहर की सलाम सलामती के लिए सलवात करूँ। आपको पता है फौहरान अजीज़ मान हमारे 45-50 मिनट हो रहे हैं, पता चला आपको?
नहीं चला ना तो जी, तो फिर हम एक 10-15 मिनट और ले लें, तो एक बुलंद सलवात पढ़ें। मेन पॉइंट आपको बता दो, देखिए आपको बनना है मौला का आशिक, बनना है ना। सुबह आएंगे, शाम आएंगे, क्या खबर कब इमाम आएंगे। इसको इमाम की मोहब्बत को आगे, इमाम की मोहब्बत की तरफ चल के जाना है ना, उसके रास्ते को कहते हैं माँ और बाप, वालिदैन। आप उनकी खिदमत करोगे, जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं और जिनको इमाम ज़माना ने उस जवाब का सलाम भी दिया और उनकी मुश्किल कुशाई भी की, वो अपने वक्त के हुज्जत खुदा से जुड़े हुए थे। तरक्की अच्छे पढ़े में अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन दर बदर डिग्रियाँ लेके फिर रहे बच्चे, लेकिन जिनकी पढ़ाई छोटी मोटी है, माँ की दुआ ने उन्हें बड़ा अफसर बना दिया। इमाम ज़माना तक पहुँचने के लिए पहला ज़ीना क्या है? माँ बाप को राज़ी रखो, उनका अदब सीखो, उनको खुश रखो ताकि इमाम खुश हो। क्योंकि आज हम इमाम का नाम ले रहे हैं ना, ये हमारा कमाल नहीं है, हमारी अम्मा की खून की शराफत है। आप सुन रहे हो और हम कह रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा एहसान है। हमारी माँ हमारे लिए शहजादियाँ हैं, लेकिन हम समझते हैं बेटी शहजादी है, माँ काम वाली है। हम उल्टे लोग हैं, उल्टे लाइन पे जा रहे हैं। माँ बाप को खुश रखो, अल्लाह इमाम राजी और इमाम राजी तो अल्लाह राजी। तो पहला काम क्या करना है? माँ बाप के सामने झुक के रहना है, उनके ओबीडियंट बनना है, उनके फरमाबरदार बनना है। जिनके ज़ईफ़ माँ बाप है उनको लिपट जाना, जाके उनके पेशानी चूमना, उनके रुखसार चूमना, उनके पैर दबाना, उनकी दवा खिलाना। उनको जब तुम छोटे थे ना तो उनकी बाहें तुम्हारा झूला थी और उनकी गोद तुम्हारा बिस्तर थी। वो तुम्हें हज़ारों प्यार करते हैं, तुम क्यों शर्माते हो? अपने ज़ईफ़ माँ बाप के चेहरे को प्यार करो, पेशानी को प्यार करो, हाथ को प्यार करो। माँ से ज़िद करो, माँ मैं आज खिलाऊंगी खाना। माँ से आपको अब बल्कि कहाँ ये दौर में 1447 हिजरी में जब इमाम पर्दे गैबत में हो तो तुम्हारा बेहतरीन वक्त वो वक्त है जब तुम जाके अपनी माँ के पास बैठे। तो इमाम कहते तुमने मेरे पास बैठा, तो मेरे पास मेरी खुरबत। माँ के पास बैठने के 3 लाख रुपए दे के हज नहीं होता, पता नहीं कबूल के ना कबूल। माँ के पास चले जाओ, चेहरे को देखो, माँ तेरी वजह से मेरी वजह से तेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, माँ मेरी वजह से तू ज़ईफ़ हो गई, माँ मेरी वजह से तेरी ये हालत बनी है। बस दिल में एहसास रखे, माँ के चेहरे को देखना एक हज का सवाब है, एक हज का। कितना आसान है ना इस्लाम, बहुत आसान है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। माँ राज़ी और माँ को राज़ी नहीं रखे ना, हम कितने भी नेक अमल करें, इबादतें करें, हर अच्छा काम करें। कुछ तो ऐसे भी बच्चे और बच्चियां होते हैं अज़ाखानों के काम अच्छे से करेंगे, सब काम अच्छे से करेंगे, माँ के बुलाने पर बाबा के बुलाने पर नहीं जाते हैं और उनको छिड़कते हैं। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मलून है वो शख्स जो अपने वालिदैन की बात नहीं मानता, उन्हें तकलीफ देता है। और कहते मलून है वो शख्स जो अपनी नमाज को ताख़ीर से पढ़ता है। मैं मासूमीन हमने मुसलसल की बता रही हैं। अब आए इमाम ज़माना के 2-4 जुमले अशार पढ़ के मैं मसाइल की तरफ आऊँ। माशाल्लाह से हमारा 1 घंटा हो जाएगा तब तक। अजीज़म आज उनके पहली मजलिस से पता नहीं कितनी मजलिसें यहाँ पे रहेगी, मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके आधी मजलिस में इमाम ज़माना पे पढ़ के आधी दूसरा कोशिश करूँगी। हमारी ज़िंदगी अमानत परवरदिगार है। मेरी ज़िंदगी, मेरा शौहर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं खुद मेरी नहीं, आप खुद आपके नहीं, सब उसकी। ये भूलना नहीं है, ना भूलना कि वो देख रहा है मुसलसल, ना भूलना कि इमाम को कूफे के लोगों ने इमाम पे पत्थर मारे। जो लोग जिद, हरदर्मी, गुस्सा, बुरे काम करते हैं वो इमाम ज़माना को लहू बोलते हैं। नामा अमाल दे के मौला रोते मेरे शिया ऐसे है, ऐ शियो तुम एक गुनाह करते हो ना तो मेरे ज़हूर में 40 दिन की ताख़ीर हो जाती है। करोड़ों शिया एक गुनाह करके इमाम के ज़हूर को पीछे पीछे ढकल रहे हैं। हमें बिल्कुल आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि आप जैसे 2 महीने 8 दिन इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं ना, महीने में एक दिन अपने घर में इमाम ज़माना का जिक्र रखें, सब मिलकर। हफ्ते में 1, महीने में 1 जो होता है। जब इमाम के बारे में मालूम ही नहीं है ना तो कैसे मोहब्बत पैदा होगी? मालूम होगा तो मोहब्बत पैदा होगी ना, मालूमात ही नहीं तो मारिफत कैसे होगी? मालूमात पहुँच जाए। जब 25 ज़िक़ात परसों आप लोगों ने रोज़ा रखा होगा, सलाम में जिन्होंने रोज़ा रखा है ना, रोज़ा ज़िक़ात के 25 का बहुत सवाब है ना। कितना सवाब है? 70 साल के रोज़ा। मैं अपना खुद एक एग्जाम्पल दे के फिर मौला शहजादे अकबर की तरफ आगे बढ़ूँगी, क्योंकि जब इंसान थोड़ा थोड़ा इनका होने लगता है ना तो ये बहुत बहुत हमारे लिए पेश है। हम थोड़ा थोड़ा इनकी तरफ रुख करते हैं ना, हम 1 कदम इनकी तरफ जाते हैं, 10 कदम हमारी तरफ आते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऑफिस की वजह से मैं 25 का रोज़ा रह न सकी और मेरे दिल ने अंदर से मलामत की। कितनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी
एक दिन रह जाती तो 70 साल का सवाब मिलता। अब कफ़े दस्त मल रही हूँ, बड़ी कर्म की हालत में ऑफिस की सीट पे बैठ के अपना काम कर रही हूँ। इतने में फिर मुझे लंच टाइम आया और मैंने फ़ौरन मोबाइल फोन खोला। देखो इमाम का कितना करम, पहली बार मैं किताबों में भी नहीं, पहली बार मेरी निगाह से वो हदीस गुजरी। जैसे मैंने खोला, कहा कि अगर तुम चाहते हो कि 100 साल के रोज़ों का सवाब तुम्हारे नाम आमाल में आए, मैंने कहा ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है। जब और से पढ़ा तो कहा तुम चाहते हो कि 100 साल तुम्हारे रोज़ों का तुम्हारे नाम आमाल में खुदा लिख दे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने वक्त के इमाम की मारिफत लोगों में फैलाओ। कितना बड़ा सवाब है इमाम ज़माना के बारे में मालूमात हासिल करना और लोगों को इश्क़ इमाम ज़माना की तरफ खींचना, ज़मीना साजी करना, हरकत करना, आगे बढ़ना, कोशिश करना कि वो हमें कबूल कर दे। जब हम नहीं कोशिश करेंगे तो हमें नहीं कबूल करेंगे वो। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हरकत करनी चाहिए, हमें मौला की मोहब्बत में उड़ना चाहिए। पंख लग जाते हैं हमको अगर हम उड़ने की कोशिश करेंगे। अगर दुनिया के लिए तो दुनिया के मीठे मीठे ख्वाब आएंगे, वहाँ घुमा यहाँ घुमा, लेकिन अगर इमाम की मोहब्बत में तो हमें ख्वाब में भी हो सकती है ज़ियारत, वो नज़र आ सकती है, वो तरफ़ वो हमें देख ही नहीं सकते। इमाम ज़माना, हम इमाम ज़माना के जो बहुत सारे अक़वाल मसाइल को लेकर उसमें से एक कौल ये है कि अगर तुम्हारी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, कोई हाजत तुम्हारी नामुमकिन नज़र आए, तो मजलिस में अकबर का जिक्र करना है। इमाम कहते हैं मैं ज़ामिन तुम्हारी दुआओं का। कौन अकबर? अभी आपने वसीयत सुना, सलाम सुना, शहजादे अली अकबर का सदका खुदा आपके भाइयों को सलाम। चेहरे पे हया रहती अजब हुस्न अदा से, अकबर की तरफ देख न पाती थी हया से। एक जा हुआ यूं नूर भी चेहरे पे सिमट कर, हर देखने वाला उसे तकता था पलट कर। चलते थे तो लगता था दुआ साथ चली है, खदमों में बिछा करती थी परियों की निगाहें, नालैन के बोसे को तड़प जाती थी राहें। चलते थे तो लगता था दुआ साथ चली है, और जीन पे बैठे नजर आते थे अली है। थी चांद के जोबन से बनी उसकी जवानी, ऐसे तो ना कहते थे मोहम्मद की निशानी। कितना हसीन था हुसैन का बेटा, नजर ना लगे ज़ैनब ने निकाब डाला। हर माँ से ये दुआ है, हर बच्चे से अपने भाइयों की सलामती के लिए, अपने औलाद के लिए दुआ कर देना। जो हाजत है अकबर का सबका बैठेगा इस मजलिस में। अपने चांद को मिट्टी पे मिट्टी लगने लगी, जब अकबर रेंगने लगे तो चादर तकिए बिछाने लगे। जब अकबर ने पहला कदम डाला उसी वक्त मौला हुसैन आए, ज़ैनब ने दोनों उंगलियां हाथ में दिखा, बहन माँ जाई गिरने तो कहा मर जाऊंगी अगर मेरी निगाह के सामने मेरा अकबर गिरेगा। बड़े नाजों से पाला, 5 बरस के हो गए, ऐसी अजान देते थे कि लहने दाऊद कुर्बान हो जाए। 12 बरस के हो गए अली अकबर, 12 बरस में अली नजर आते थे। 12 बरस के तनूर रोशन, और कोई मुसाफिर आता अकबर के तनूर से खाना खा के जाता। 24 घंटे जिसके तनूर से रोटियां बटे उसे अली अकबर कहते हैं। मजबूत पेशानी, चौड़ा सीना, खूबसूरत चेहरा, चेहरे पे निकाब, एक नूर पेशानी से निकलता है। क्यों अली अकबर को लोग देख के बेहोश हो जाते थे? बताया आपको, शहजादे के चेहरे पे निकाब होती, लेकिन कभी कभी जिद करते तो बाहर निकलने का जब मौका होता तो अली अकबर और हज़रत अब्बास, एक मोहम्मद वक्त का एक अली वक्त का, जब ये दोनों बाहर निकलते तो जैसे ही बाजार में जाते तो तराजू छूट जाते, दुकान वाला सौदा देना बंद कर देता, लोग अपने हाथ से थैलियां छोड़ देते और देख के रह जाते, देखिए कौन जा रहा है। इसलिए कि शहजादी के नाक से और पेशानी से ऐसा नूर निकलता, जब दो नूर निकलते तो टकरा के नूर का हाला अली अकबर के सर का तवाफ करता और गली नूर अला नूर हो जाती, शहजादा गुजर जाता, लोग देख के रह जाते। आज़ादा रो ऐसा हुसैन का बेटा, ऐसे बेटे को आका ने 10 मुहर्रम दीन की खातिर, बस मेरी कौम की बेटी हो, जब अजान सुनना तो ये समझ के सुनना अली अकबर के कलेजे का लहू है जो मस्जिद के लाउड स्पीकर से टपा करता है, ताकि नमाज की अजमत 10 मुहर्रम 61 का बेटा जाओ अजान दो, ताकि ज़माने को बता तो चले कि मेरा बच्चा हम शबीह पैगम्बर है। अकबर की ज़ुबान जवानों को प्यास ज़्यादा लगती है, अकबर की ज़बान पर कांटे आ गए हैं। अकबर आए और कहा अल्लाहु अकबर। आवाज़ ज़ैनब ने सुनी, तड़प के गई थी, अम्मा मेरा बच्चा आखिरी अज़ान दे रहा है, फिर मेरे लाल की अजान में सुन सकूं या ना सुन सकूं, जा अम्मा जरा कह मेरे बच्चे को बुलंद आवाज़ में अजान दे।
फिजाई का आका आपकी बहन अकबर की अजान सुनना चाहती है। कहा बुलंद आवाज से अजान दो। हुसैन ने कहा अकबर मेरी बहन तेरी अजान सुनना चाहती है। अकबर ने हाथ जोड़ के कहा बाबा दोबारा कहना कौन मेरी अजान सुनना चाहती है। कहा मेरी बहन तेरी अजान। अकबर की आंखों से आंसू टपक गए। बाबा मेरी बहन सोहरा मुझसे बहुत दूर। बाबा आपकी बहन तो आपके साथ है बाबा। ऐ मेरे इमाम बाबा मैंने बड़े वादे किए थे सोहरा में आऊंगा, सोहरा में आऊंगा तुझे ले जाऊंगा। मेरे सारे वादे बाबा खत्म हो जाएंगे। मैं शहीद हो जाऊंगा बाबा। आज एक ऐसा मौजज़ा दिखा दो मेरी आवाज मेरी बहन भी सुने और आपकी बहन भी। हुसैन ने उंगली का इशारा किया। फजाओं में कहा अच्छा अकबर मेरी बहन भी सुनेगी और तेरी बहन भी। सूखी हुई जबान से पूरी ताकत से कहा अल्लाहु अकबर। आवाज फजा के दोष में परवास करती हुई मरीजा बहन के कान से टकराई। सोहरा सा फेंक के उठी। उम्मुल बनीन से कहती दादी अम्मा मेरा भैया आ गया। दादी अम्मा मुबारकबाद है मेरा भैया आ गया। सोहरा को सीने से लगा के दादी ने कहा अगर तेरा अकबर आता तो अजान मुझे भी सुनाई देती। सोहरा तेरा अकबर नहीं आया। सोहरा तुझे गुमान हुआ है। अज़ादार और कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। प्यासे को खजा सांस भी लेने नहीं देती। एक लाश अभी लाया है एक लेने चला है। अज़ादार और कुर्बानियों पे कुर्बानियां पेश हुई और वो वक्त आया जब कोई न रहा। आए हसीन बेटा तेरे बाबा मेरा सलाम लो बाबा मुझे भी जाने दो। हुसैन ने कहा अकबर जिसने पाला है जो तेरी माँ है एक से तू इजाजत दे एक से मैं इजाजत दिलाऊंगा। बहन से मौला हुसैन ने तसव्वुर करिएगा ज़ैनब ने पाला है। तेरा ममनून है हर दौर का इंसान ज़ैनब। सोखता दिल को मिला तुझसे ही इरफा ज़ैनब। जिसको 18 बरस नाज़ों से पाला जिसको 18 बरस नाज़ों से पाला था। अज़ादर कैसे मौला हुसैन कहे ज़ैनब अकबर को मरने भेजे। आए एक मर्तबा सवाली बन के आए सैयदा की जोड़ी खेमे पर और कहा बीबी मैंने 18 बरस पहले तुझे अकबर दिया था जिसे पाल के तूने मोहम्मद बना दिया। कुछ देर के लिए मुझे दे दे अगर बच गया तो मैं लाके तुझे लौटा दूंगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा भैया सवाली बन के क्यों आया है हुक्म दे ना। हुक्म दे कहा अकबर जाओ। अज़ादारों माँ के पास अकबर तन्हा आए अकेले आए और एक मर्तबा माँ की गोद में सर रखा। कहा अम्मा ये बता अम्मा तू अफजल है या दादी ज़हरा। उम्मे लैला ने कहा अकबर मैं उनकी कनीज़ हूँ मैं उनकी खाक हूँ। अकबर ने हाथों को जोड़ के कहा अम्मा ज़हरा के लाल पे अपने लाल को कुर्बान कर दे। अज़ादारों माँ ने भी इजाजत दी। अब आए कि कहने लगे बाबा मैं जा रहा हूँ बाबा मेरा आखिरी सलाम ले लो। उखाब पे अली अकबर सवार हुए। अज़ादारों अकबर का उखाब बढ़ा। पीछे से आवाज़ आई बेटा जरा एक उतर जाओ मेरे पास आओ। कई बार मौला हुसैन ने रुखसत किया कभी कह के बेटा तेरे रुखसार चुम लो तेरी रेशम मुबारक चुम लो। अकबर आप में तेरा सीना चुम लो। अकबर आप में तेरे होंठ चूम लो। अकबर आप में तेरी आंखों को चूम लो। कई बार इस तरह बुलाया ना शहजादे ने हाथों को जोड़ के कहा बाबा मेरे मुकद्दर में शहादत नहीं बार बार विदा करते हो बार बार बुला लेते हो। कहा बेटा अब नहीं जाता बेटा अब तेरे पीछे नहीं आऊंगा लेकिन एक वादा कर अरे मेरे लाल जब तक तू फौजों में गुम ना हो जाए मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। अब नहीं बुलाऊंगा। साहिब औलाद का मजमा है तसव्वुर करना। अब कहा नहीं बुलाऊंगा। अब जो अकबर का रहवार बढ़ा हुसैन के कदम बढ़े रहवार दौड़ने लगा हुसैन दौड़ने लगे रहवार तेज हुआ प्यासे मौला से दौड़ा ना गया। अमामा खोल के कमर में बांधा और तेज तेज दौड़ने लगे नाज़ादारों। अली अकबर के रहवार के सामने एक बीबी टूटी हुई पसलियां संभाले हुए अकबर आहिस्ता मेरा हुसैन गिर ना जाए मैंने चकिया पीस के पाला। खुदा आपके जवानों की उम्र दराज करे। अज़ादारों अली अकबर ने कहा बाबा बाबा मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं बाबा। तो जब जुमला कहा अकबर अगर तेरा भी कोई अकबर होता मेरे दर्द का तुझे अंदाजा लगता। अकबर मैं जानबूझ के तेरे पीछे नहीं आ रहा तू जा रहा है मेरे जिस्म से जान जा रही। जज़ाकुम रब्बकुम जो खाली बैठे हैं मातम करते जाना क्योंकि अली अकबर के मसाइब पर अगर कोई बुलंद आवाज से नहीं रोती ना अकबर की माँ जख्मी हथेलियां टेकते हुए आती है और कहती है तुझे क्या पता मेरा अकबर कितना हसीन था।
बहुत ज्यादा प्यासे हैं बाबा। बाबा आपकी जबान तड़प गई है बाबा, आपकी गले में हमसे ज्यादा बड़े बड़े कांटे। कहा एक और बार माँ को सीने से लगा दे। अकबर तेरी माँ बड़ी बेचैन है, आखिरी बार माँ को सीने से लगाया, बस आखिरी आधा मिनट बस अभी पर छोड़ी मतम करते जाना। अज़ादारों अब जो मैदान में आए, इधर पिसर साथ ने कहा हमने हाशिमियों को जब भी मारा है मकर और फरेब से मारा है। हसीन बिन नमीर को 9 मीटर का बड़ा नेज़ा दिया, जाके करीब बातों में लगाना और जब इसे फरेब से मारना। हसीन करीब आया, नेज़ा हाथ में नीचे की तरफ रखा हुआ है और कहने लगा जवान तो कितना खूबसूरत है, जवान तेरे क्या हमले है, जवान तेरी ऐसे दांत देने लगा और एक मर्तबा दांत देते हुए कहा ऐ जवान तेरी फूफी बाहर आ गई। अकबर ने जो खैमे का रुख किया, 9 मीटर का लंबा नेज़ा अकबर के कलेजे की तरफ गोश्त को फाड़ता हुआ, हड्डियों को तोड़ता हुआ, दिल में सुराख करता हुआ। नेज़ा पीछे की तरफ है, बड़ा लंबा नेज़ा है। साहबी औलाद को मजमा तसव्वुर कीजिएगा, अली अकबर ख्वाब पे बैठे हुए हैं, कलेजे में बर्छी का पल है, आधा नेज़ा आगे है, अज़ादारों बीच में नेज़े के अकबर का जिगर है। हसीन ने देखा बड़ा ताकतवर है, मैं क्या करूं कि ये ना बचे, मैं क्या करूं कि ये ना बचे। मलून ने घोड़े को लगाए, आगे बढ़ के नेज़े के अनी में हाथ डाला, नेज़े को घुमाना शुरू किया। अकबर के कलेजे का सुराख गहरा हुआ, अरे खून के फव्वारे निकलने लगे, घुमा घुमा के झटका दिया, आवाज आई बाबा मेरा आखिरी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन उठते जाते गिरते जाते हैं, आवाज दे रही नहीं नाली अकबर बिदर पे आज नहीं वाले दाद है बेटा, मुझे खबर नहीं दिन है क्या। बस आखिरी जुमला ज़्यादा मातम करना जो खाली बैठे, खुदा किसी ज़ईफ़ बाप को जवान बेटे को मैं सब मसाइब छोड़ी हूँ। कैसे मेरे मौला गिरते थे, कैसे मेरे मौला उठते थे, कैसे दुश्मन मौला को सताते थे, कैसे मौला की गुर्बत पे हंसते थे, सारे मसाइब छोड़ रही हूँ। बस एक ही जुमला ताकि आपकी हाजत पूरी हो जाए। अज़ादारों अकबर को बड़ी मुश्किल से मेरे मौला अकबर तक पहुँचे और एक मरतबा अकबर के जख्मी फटे हुए सर को उठाया, अपनी गोद में रखा, झुक के जो चूमा, पेशानी पे मौत का पसीना आया हुआ था। अकबर ने कहा अकबर से कहा बेटा बाबा आया है, बेटा बाबा आया है। अकबर की आहिस्ता से आवाज आई बाबा कैसे बोलूं, तेरे कलेजे में बच्चे का बल है, बाबा मेरा दम खड़ा है, बाबा बाबा मुंह फेर लो बाबा। बाबा हसीन कह रहा था हुसैन बड़ा साबिर है, उस वक्त मानूंगा जब जवान के कलेजे से बर्छी का पल, वो हुसैन जो ठोकर पे ठोकर खा रहे, वो हुसैन जिसे रास्ता नजर नहीं आ रहा। इम्तिहान है हुसैन की अजीम मंजिल, आवाज अल्लाह की आई आदम से खातम उतरो करबला में, मेरा हुसैन क्या इम्तिहान दे रहा है। आस्ती उल्टी अपने जवान को जमीन करबला पे लिटाया, एक हाथ जमीन करबला पे रखा, एक हाथ बर्छी के बल में रखा, चेहरा नजफ की तरफ या अली मदद, बाबा अली मदद। अज़ादारों जब बर्छी का पल खींचा न गया, अकबर की आवाज आई बाबा मैं इस्माइल थोड़ी नहीं हूँ कि मैं एड़ियाँ रगड़ूं, बाबा जैसे चाहो वैसे बर्छी का पल निकालो। अब अकबर के अब हाथ मिट्टी में जरा सहारा लिया, नेज़े की अली को हिलाना था। अज़ादारों जमीन को जलजले आने लगे, ज़ैनब ने ख़ैमे का पर्दा उलट दिया, भैया हिस्सा निकालो भैया, मैंने 18 बरस बड़े नाज़ों से पाला, आए मेरा मन्नतों वाला या अली कह के बर्छी का पैसा खींचा, अकबर का कलेजा नेज़े की अली खून टपकता हुआ वहाँ गुर्बत अज़ादारों ने मजलूम करबला दोनों हाथ बुलंद करके सदका ली। आज 3 मस्तूरात आपको सदका देंगे, और बेदादियों को बड़े प्यारे होते हैं। शेख ज़हरा अकबर का सदका देंगी।
اور جس نے پالا ہے وہ زینب علی اکبر کا صدقہ دیں گی اور لیلا بھی علی اکبر کا صدقہ دیں گی. دونوں ہاتھ بلند کرے بلند آواز میں الہی آمین کہ خدایا اس ماں کا واسطہ جو اپنے بچے کے سر پہ صحرا نہ باندھ سکی, جو مائیں اپنے بچوں کو لے کے پریشان حال ہے, ان کو نیک و سارے ان کے بیٹوں کو زوجہ عطا فرما. ہمارے قوم کے بیٹے بیٹیوں کے اچھے نصیب فرما. میرے اللہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے نفسوں کو ضائع ہونے سے بچا, حسد جلن تکبر غیبت ریاکاری جیسے لعنتوں سے محفوظ رکھ. خدایا کربلا ہماری زندگیوں میں لا دے. خدایا ایران کا تحفظ فرما, امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما. جتنے دشمن اسلامی ممالک ہے ایران کے دشمن ہیں انہیں بھی نیست و نابود فرما. خدایا ان آنکھوں کو امام زمانہ کے دیدار سے سیراب کر. خدایا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. بیمار امام کا صدقہ جو بیمار نہ ہوتے ہوئے بیمار کے روحانی جسمانی امراض سے ہمارا تحفظ فرما. جو بیمار ہے انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما. اس ماں کا واسطہ جو اپنے بچے کو گھٹنیوں کے بل چلتا نہ دیکھ سکی, جو گودیاں سونی ہے اسے آباد فرما. خدایا حسین کے حسین بیٹے کا صدقہ قوم کے جوانوں کو سلامت رکھ. خدایا ہم سب کو زینب طالب کو صحت کامل و عاجل عطا فرما. خدایا جو ہمیں یہاں بلائے ہیں, لائے ہیں, جو ذریعہ بنے ہیں, جنہوں نے کام کیا ہے, ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما. اور ان خدمتوں کے عوض میں نے لشکر مہدی میں خدمت کرنا نصیب فرما. خدایا ہماری زبانوں پہ تیرے کلام مجید کے زمزمے کو جاری فرما. نماز شب کی توفیق عنایت فرما. ہر شر سے ہمارے دامن کو محفوظ رکھ. ہر خیر میں ہمارا حصہ لگا دے. جال حق کی صدا پہ ہمارے زبانوں پہ لبیک مہدی جاری فرما. خمس دینے کی توفیق عنایت فرما. خدایا نفس کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں اسے دور فرما. روحانی جسمانی امراض سے تحفظ فرما. خدایا کسی کا محتاج نہ کر. جب تک زندگی ہے فرش عذاب پہ آنے کے قابل رکھ. اللہم اجل ولیک الفرج یا رب محمد بحق محمد ظہور قائم آل محمد الہی آمین. کل صبح یہاں پہ فجر کی نماز نہیں کیونکہ ہم کسی اور جگہ جا رہے ہیں رہنے کے لیے, تو معذرت ہے, لیکن مجلس کا یہیں پہ مرزا یاور حسین کے گھر پہ. کتنے بجے کل مجلس اور نماز؟ 5 بجے.